you a brief about it so that you are able to catch up with what we will study today. And the rest of the link of the recording for yesterday, I'll be sharing it. Okay? Okay, so what we studied yesterday is we were talking about philosophical categories of communication research theoretical background. Yesterday we were studying the background of theories that is there in communication research, and we need to understand this background because otherwise, normally what people do is that when they're studying about the research area of some specific discipline, then they just go and study the sequence of how theories have developed over time. So they will be talking about what happened in 1910, then what happened in 1920s, then what happened in 1930s. So they will have a sequence. But the problem with the communication research is that there has been no specific sequence or no chronology of how things have developed. People have been raising the same questions with every time there is some kind of technological change in communication, and then they have been going back again to the same field. Okay. Okay, so for this reason, there are theorists, those who have given four different categories to theoretical background of this field, and this four categories, they help us in understanding the research properly. This helps us in understanding how we can put different theories into different category, and how we can also understand how the researcher, how the theorists have worked for their theories, for their research, how they have understood certain idea, and how we can talk about those ideas which have already been developed, already been used in our field. So for this purpose, the researchers have taken the base of goals, that is उद्देश्य क्या रहा है रिसर्च करने का, and then they have taken three different philosophical terms to give the four categories of communication research theoretical background. Okay. ये बहुत ही फेमस एक बुक है बाय स्टैनले बरान, और उन्होंने और उनके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने कि इस फील्ड को, जो कि कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है कम्युनिकेशन को, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, दैट यू टेक फ्रॉम सोशोलॉजी, यू ऑल्सो टेक फ्रॉम कल्चरल साइंस, यू ऑल्सो टेक फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, यू ऑल्सो टेक फ्रॉम economics. So there is very complex system of research here. You can talk about anything related to social science, and then you will still be talking about communication. So in order to make it a little simpler, जो researcher और theorist रहे हैं, उन्होंने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इस फील्ड का, उसको चार अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा है, और उन कैटेगरीज को डिवाइड करने के लिए एक आधार लिया है उद्देश्य का, यानी कि किस उद्देश्य से रिसर्च किया गया है, और बाकी के जो तीन बेसिस लिए हैं वो फिलोसफिकल टर्म्स हैं, जो कि अगर आप फिलोसफी के डिटेल में जाते हैं, स्पेशली जब व्हेन यू कनेक्ट फिलोसफी एंड एजुकेशन और फिलोसफी ऑफ हाउ वी टॉक अबाउट नॉलेज, तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं. ओके. ओके, नाउ नंबर वन दैट इज गोल, वो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था. पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ चार कैटेगरीज का. पोस्ट पॉजिटिविज्म इज वन कैटेगरी. हेयर पॉजिटिविज्म मीन्स more about natural sciences, more about physical sciences. physical sciences या natural sciences ऐसी हैं जहाँ पर कि research जो आप करते हैं उसमें आप 100% surety दे सकते हो. You have done some kind of experiment, you could say that if you will be using this much of chemical and that kind of reaction, तो आपको ये result मिलेगा. लेकिन you cannot say likewise for human beings. आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आज अगर ये opinion है किसी की तो कल भी ऐसे ही रहने वाली है. He might change the opinion, maybe just within few minutes he change his opinion. ऐसा भी हो सकता है. तो ये जो यहाँ पर श्योरिटी नहीं है. दूसरा रीजन, आप खुद ह्यूमन बींग्स, और जब ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं देन यू हैव दिस आइडिया कि आप पूरे बायसनेस को नहीं छोड़ पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ फीमेल, इफ यू और मी वी गो एंड रिसर्च अबाउट सम टॉपिक रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट और सम काइंड ऑफ ब्रुटैलिटी अगेंस्ट वुमेन, तो हमारी बायसनेस थोड़ी ना थोड़ी आ ही जाएगी, नो मैटर हाउ मच वी ट्राई नॉट टू यूज इट. तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर पोस्ट वर्ड ऐड करा है कि आप साइंटिफिक होना तो चाहते हो अपने रिसर्च में, बट क्योंकि सोशल साइंसेज में दिस इज नॉट प्योरली पॉसिबल, सो वी विल बी एडिंग
post here, this post means that the researcher in this category will try to be as scientific as possible. Okay. Okay, now the next category is cultural. Cultural category को हम hermeneutics भी बोलते हैं, ये इसका पुराना नाम है. Hermeneutics से मतलब ये है when you talk about the studies of your scriptures, of your religious text, of your mythological text, और उसमें आप छुपे हुए मीनिंग को, छुपे हुए अर्थ को समझने की कोशिश करते हो, देन वी कॉल इट hermeneutics और कल्चरल. कल्चरल नाम इसलिए हो गया है बिकॉज अब रिलीजियस और माइथोलॉजिकल स्टडीज उतनी नहीं होती हैं. अब मीडिया के मैसेज में मीनिंग है, उस केसेस पे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कल्चर इट इज इवॉल्विंग. दैट इज व्हाई hermeneutics से बदल के अब वो नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है. द मोर contemporary name of this category is cultural. Then we have another category that is critical. क्रिटिकल से मतलब यहाँ पर है जब आप बहुत ही ज़्यादा विश्लेषणात्मक हो जाते हैं, यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट क्रिटिसाइजिंग द सिस्टम दैट इज देयर एंड यू आर मोर कंसर्न अबाउट ब्रिंगिंग द चेंज इन द सिस्टम. तो इस कैटेगरी को हम क्रिटिकल बोलते हैं. एंड देन देयर इज नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव से मतलब ये है कि आप किसी भी रिसर्च टॉपिक के अंदर या किसी भी सिस्टम में, आप न्यूज़पेपर को ले लीजिए, टीवी चैनल्स को ले लीजिए, रेडियो, फिल्म, अगर आप किसी भी तरह की स्टडी करना चाह रहे हैं और जो नॉर्म्स आप बेस बनाएंगे अपने रिसर्च का, उसके बेसिस पे ही आप जजमेंट देंगे. सो योर गोल विल बी टू जज the research topic that you have selected on the basis of system that you have selected. For example, we say कि हम देखना चाहेंगे AIR का बेस लेते हुए कि किस तरीके से जो प्राइवेट रेडियो चैनल्स हैं, क्या वो उतनी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं जितनी कि एक ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचती है. तो यहाँ पर हमारा आधार AIR हो जाएगा और जो रिसर्च हम करेंगे वो प्राइवेट चैनल्स हो जाएंगे. सो इन नॉर्मेटिव कैटेगरी यू सेलेक्ट वन बेस फॉर योर कंपैरेटिव एनालिसिस और उसके बेसिस पे आप बाकी चीज़ों को चेक करते हैं. ओके, ये गोल है. दूसरा पॉइंट जो है वो है एपिस्टेमोलॉजी का, जो हमने कल पढ़ा था. नॉट एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी का. ऑन्टोलॉजी एक फिलोसफिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपके होने का, आपके एग्जिस्टेंस का, आपके एक सोसाइटी में रहने की वास्तविकता क्या है. हाउ डू यू अंडरस्टैंड द रियलिटी अराउंड यू. और क्योंकि हम यहाँ पर रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑन्टोलॉजी का कम्युनिकेशन रिसर्च में या सोशल साइंस रिसर्च में मतलब ये है कि आपके जो रिसर्च टॉपिक है उसमें क्या जानने योग्य है, और जो जानने योग्य है उसको आप किस तरीके से जानते हैं, नॉलेज क्रिएशन का तरीका क्या है. आप जो टॉपिक ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड का हो, मीडिया में, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टीवी हो, फिल्म हो, रेडियो हो, फोक कम्युनिकेशन हो, ट्रेडिशनल हो, किसी भी तरह का हो, या फिर आपसी हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, ग्रुप कम्युनिकेशन हो, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन है, उसमें जब आप बात कर रहे हैं कि यहाँ जानने योग्य क्या है, और ये जो जानने योग्य है इसको आप किस तरीके से मानते हैं कि वो नॉलेज बन पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि जब तक कि एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च करके हम चीज को प्रूव नहीं करते तब तक वो नॉलेज नहीं है हमारे लिए. तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म है. और अब बोल रहे हूँ कि रियलिटी हर इंसान के लिए अलग है, क्योंकि हम सभी अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपना जीवन जीते हैं. तो रियलिटी या जानने योग्य चीज रिसर्च टॉपिक में वही होगी जो आप उस समय अपने रिसर्च टॉपिक में बातचीत करेंगे, और उसके बेसिस पे आपको जो समझ में आएगा वो क्लियर होगा. क्रिटिकल के साथ जानने योग्य चीज और जो वास्तविकता है वो होती है आपका रिसर्च टॉपिक आपने सेलेक्ट करा है, उसमें आप किस तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, हाउ यू आर क्रिटिकली एनालाइजिंग इट, हाउ यू आर पिन पॉइंटिंग व्हाट इज रॉन्ग, एंड हाउ यू आर एबल टू ब्रिंग द चेंज इन इट. एंड देन द लास्ट वन, नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव में जानने योग्य चीज जो आपने आधार लिया है उसके बेसिस पे ही तैयार होता है. मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि हम जिस तरीके से फिल्म्स बनती हैं, जैसे राज कपूर ने बनाई हैं, या और भी हम ले लेते हैं जैसे संजय लीला बंसाली बनाते हैं, मणि रत्नम बनाते हैं, ये जो एक तरीका है एक बहुत ही आर्टिस्टिक फिल्म बनाने का या बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाने का, इनको हम बेस बनाते हैं और इनके बेसिस पे हम जज करेंगे कि अभी नए फिल्म मेकर्स कैसे काम कर रहे हैं. तो उस रिसर्च टॉपिक के लिए जानने योग्य
योग्य चीज वही है जो आपने आधार लिया है, यानी कि आपके हिसाब से उस रिसर्च टॉपिक के लिए ये जो 3 निर्माता आपने लिए हैं, जो फिल्म मेकर लिए हैं, सॉरी निर्माता नहीं, निर्देशक होंगे, जो निर्देशक आपने लिए हैं, ये निर्देशक किस तरीके से फिल्में बनाते हैं, सिर्फ वही आपका आधार बन जाता है। सो ऑन्टोलॉजी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसका टर्म थोड़ा फिलोसफिकल है, इसलिए समझने में दिक्कत होती है। इसका मेन आइडिया सिर्फ यही है कि आप जब कोई रिसर्च टॉपिक चूज करते हैं, जब आप किसी तरह का शोध करना चाहते हैं, तो आप नॉलेज को किस तरीके से ग्रहण करना चाहते हैं। आपके हिसाब से नॉलेज कब एक ज्ञान का रूप लेती है, यानी कि जब आपके सामने जो भी रिसर्च टॉपिक है उसमें ज्ञान क्या है, क्या चीज जानने योग्य है, ये डिसाइड करने का तरीका ही आपको कैटेगरी अलग अलग देता है। अगर आपका तरीका साइंटिफिक है तो आपकी कैटेगरी पोस्ट पॉजिटिविज्म है। अगर आपका तरीका ये है कि आप मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते कोई एक परफेक्ट रियलिटी नहीं होगी, सबकी अलग अपनी अलग अलग समझ होगी, और आप उस डिफरेंस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कल्चरल है। अगर आप बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक होकर समझना चाहते हैं कि समाज कैसा है, लोगों की समाज के साथ आपसी जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, तो ये क्रिटिकल हो जाती है, यानी कि डायलेक्टिक हो जाएगी। डायलेक्टिक से मतलब ये है समाज के नियम, समाज के रहने सहने के जो तरीके हैं, और उसके साथ लोगों की आपसी इंटरेक्शन जो है। और लास्ट है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव से मतलब है कि जो भी आप जिस भी तरह के नियमों को आप आधार बना रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, वही आपके लिए ज्ञान को क्रिएट करने का माध्यम बनता है। दैट बिकम्स द बेस फॉर यू टू क्रिएट नॉलेज। ओके, okay. Now we'll start talking about the two philosophical terms that we missed yesterday. कल हम लोग जो नहीं कर पाए थे क्योंकि लेक्चर 12:30 तक हो गया था, फिर I left because फिर आप लोगों की पूरे दिन ही क्लासेस होती हैं, तो उससे ज़्यादा भी क्लास नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी टू मच फॉर यू। तो लेट्स टॉक अबाउट एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी से मतलब ये है कि आप क्या मेथड यूज कर रहे हैं नॉलेज को अपने रिसर्च टॉपिक में क्रिएट करने के लिए, विच। हाँ जी, हाँ बेटा। हाँ ठीक है ठीक है, देखो, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ज़रूरी है समझना कि इसका यूज़ क्या है। योशिता, यूज़ ये है कि आप जब रिसर्च करेंगे, आपका रिसर्च लोगों के लिए कैसे यूज़फुल है, आपका रिसर्च आपके अपने आप के लिए, व्हाई यू आर डूइंग इट। हम लोगों को नॉर्मली ये जवाब नहीं पता होता है। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि मैं अपने ही रिसर्च की बात करूं, मेरा रिसर्च जो है वो साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन पे है। और मैंने जो रिसर्च है वो इसलिए करा था बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी डू सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, हम किसी भी तरह का जब संचार करते हैं, तो उस बेसिस पे आइडेंटिटी और जो कल्चर है वो किस तरीके से क्रिएट होता है। और ये समझने के लिए मैंने साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन करा था। ओके, अब बात यह है कि मैं यहाँ पर सिर्फ समझना चाह रही थी। अगर मान लीजिए मेरा गोल यहाँ पर होता कि मैं समझना नहीं चाहती हूँ, मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज द वे आइडेंटिटी जो है वो बनती है, और इसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करी जा सकती है कि अगर आप ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी ऐसे बनेगी। और इस तरीके से मैं लोग जैसे संचार करते हैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ, और इसके साथ साथ इस चीज को भी कंट्रोल कर सकती हूँ कि आगे फ्यूचर में कम्युनिकेट करके आइडेंटिटी और कल्चर किस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर मैं ये ऐसा कर रही होती तो मेरा रिसर्च जो है वो पोस्ट पॉजिटिव बन जाता। अपने रिसर्च को बेहतर समझने के लिए, उसका यूज लोगों को समझाने के लिए, अगर हमारा बेस क्लियर हो जाता है तो बहुत ही ईजी हो जाता है आपको पीएचडी के रिसर्च में पूरे टाइम पे अपना दिमाग क्लियर रखने में कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ये लोगों के किस काम आने वाला है, और आप अपने इस रिसर्च को जब किसी को समझाएंगे, डिफेंड करेंगे, तो आपको क्या बात बोलनी है। ओके, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जब बात करते हैं आजकल मीडिया को लेके, जैसे आप सोशल मीडिया पे जो सुनते रहते हैं, या ट्विटर पे सब जो सुनते रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी जो कि मीडिया को स्टडी करते हैं, मीडिया क्रिटिक हैं, वो बहुत सारे तरीके से आपको ओपिनियन देते हैं। ये सब चीजें तो देखते ही होंगे, है ना।
हेलो। हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल रिसर्च। ये क्रिटिकल रिसर्च है बिकॉज़ वो सभी लोग जो हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है, और वो चाहते हैं कि उनकी क्रिटिसिज़्म की वजह से लोग देखें कि कहाँ गलती हो रही है और वो फिर इसको बदलें। अगर मान लीजिए कि मैं ये बात करूँ कि ये जो क्रिटिसिज़्म का तरीका है, ये सही नहीं है, हमारी अप्रोच कल्चरल होनी चाहिए, तो वो उसको बोलने का आधार इसी में है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्रिटिसिज़्म के बजाय हम समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से मीडिया काम कर रहा है, कैसे हमारा समाज है, और हम ये भी समझने की कोशिश करें कि हमारे समाज को मीडिया का किस तरह का काम चाहिए, और उस समझ के आधार पर हम बात कर सकें कि हमारे जो कंट्री है उसमें किस तरह की वर्किंग लोगों की होनी चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, इफ आई एम फोकसिंग मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पर मेरी अप्रोच क्रिटिकल के बजाय कल्चरल हो जाएगी। ओके। और आप देखते हो कि बहुत सारे मीडिया ऐसे होंगे जो कि क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, वो सीधे ही बोलते हैं कि आप बात करिए कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा गया है उस हिसाब से काम करिए, आप सुप्रीम कोर्ट को रेफर करिए, वहां पर अगर आप अपनी याचिका दायर करते हैं और वो जैसा जवाब देते हैं उस पर आप काम करिए। वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि ना वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना वो किसी तरीके से कोई कंट्रोल करके पोस्ट पॉजिटिविज्म में आ रहे हैं, वो एक नॉर्मेटिव बात कह रहे हैं, यानी कि उनका आइडिया ये है कि आपके कंट्री में जब सारे नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बने हैं तो उसको फॉलो करो, उसके हिसाब से जो चीज़ सही है वही करिए। तो ये जो अप्रोच है ना, ये क्लैरिटी आपके अप्रोच के अंदर तब आती है जब आप इस बेस को अपने दिमाग में धीरे-धीरे बिल्कुल बसा लें। उसके बाद आपसे कोई कभी भी किसी भी तरह की बात करेगा, कोई बोलेगा कि मीडिया की एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या है? तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे बोलने में कि इट इज़ क्रिटिकल इन नेचर। और अगर आपसे कोई बोलता है कि यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन क्या है? देन यू कुड से सिंपली कि दिस इज़ मोर कल्चरल इन अप्रोच। फिर देन यू इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाता है। इफ यू से लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी मीडिया की कैसी है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो इट इज टोटली साइंटिफिक इन नेचर, सो इट इज पोस्ट पॉजिटिविज्म इन नेचर। तो ये जो बात करने का तरीका है, ये आपको तभी आता है जब आप इस आधार को समझो। ओके। जैसे हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं सेलेक्ट करती हूँ किसी न्यूज़ चैनल को, और मैं उस न्यूज़ चैनल का जो काम करने का तरीका है उस पर रिसर्च करना चाहती हूँ। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनका कुछ टाइम का जो कंटेंट है उसको देखूँ, और उसके बाद मैं ये बता सकूँ कि ये ऐसा काम जो कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या इनका किसी नेता का सपोर्ट है, या कुछ और तरह का कोई देयर इज सम काइंड ऑफ हिडन अग्रीमेंट और हिडन एजेंडा हेयर, और उसके बेसिस पे ऐसा काम कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे बात कह रही हूँ, और फिर मैं उसके बेसिस पे चाहती हूँ कि मैं आगे भी इनका काम कैसा होगा इलेक्शन के दौरान या किसी और चीज के टाइम पे उसको प्रिडिक्ट कर सकूं, तो मेरा नेचर ऑफ रिसर्च हो जाएगा पोस्ट पॉजिटिविज्म। अगर मैं ये बोलूं कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ उनके काम की और प्रिडिक्शन भी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक समाचार जो चैनल है वो कैसे काम करता है, किस तरह के प्रोग्राम बनते हैं, एंकर कैसे एंकरिंग करता है, कंटेंट कैसे डिसाइड होता है, तो मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है, कल्चरल है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये जो न्यूज़ चैनल है इसका काम बिल्कुल सही नहीं है, एक नेता के सपोर्ट में, पार्टी के सपोर्ट में आके ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये समाज के लिए गलत है मीडिया का इस तरह का दुरुपयोग, और हमें इसको बदलना है, तो मेरी अप्रोच यहाँ पर क्रिटिकल हो रही है। और अगर मैं इन सब से हट के मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बोला है कि आपको फोर्थ पिलर के तौर पे काम करना है, आपको सिर्फ फ्रीडम नहीं मिलती है, आपको उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं जिनके बारे में आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, जैसे कि देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिविजुअल प्रिवेसी से रिलेटेड। तो इस आधार पे मेरा रिसर्च जो है वो नॉर्मेटिव बन जाएगा। ओके। तो ये जो जिस तरीके से मैं भी आपको एग्जांपल दे पा रही हूँ, ये जो क्लैरिटी है दिमाग में रिसर्च से रिलेटेड, चाहे वो पहला का रिसर्च हो, चाहे जो रिसर्च अब आप आगे करना चाहेंगे, ये क्लैरिटी तभी आ पाती है जब आपको ये जो बेस है ये क्लियर हो जाए दिमाग में। ओके। और ये एक बार परेशान होने की, हाँ 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 जयवीर बोलो। हम्म 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 हम्म। हम्म। हेलो जयवीर, आवाज कट रही है, विल यू रिपीट? हेलो।
हम्म हम्म। नहीं, वो जयवीर, वो डिपेंड करेगा आपके अप्रोच क्या है। अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो सिर्फ समझने के लिए कि एक चैनल दूसरे चैनल से फर्क कैसे है, तो वो कल्चरल ही रहेगा। अगर आप ये चाहते हो कि एक तो आपके आपके हिसाब से एक चैनल जो है वो सही काम कर रहा है और आप दूसरे को उसके बेसिस पे जज कर रहे हो, तो ये क्रिटिकल हो जाएगा। और अगर आप दोनों ही चैनल का जो कंटेंट है वो देख रहे हो किसी और आधार पे, यानी कि आपने एक आइडियल स्टैंडर्ड ले लिया कि सबसे सही तरीका काम करने का वैसा है जैसे दूरदर्शन काम करता है, और अब आप प्राइवेट दो चैनल को लेके टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा काम है। या आपने जो एडवर्टाइजिंग बॉडी है इंडिया की, उसने जो नियम दिए हुए हैं उनको आपने आधार बना लिया, फिर आप दो चैनल को जज कर रहे हो कि वो कैसे काम करते हैं। या पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की कोई गाइडलाइन है, उसको आप आधार बना के जज कर रहे हो दो चैनल कैसे काम करते हो, तो ये नॉर्मेटिव हो जाएगा। सो द रिसर्च टॉपिक दैट यू आर सेलेक्टिंग, वो उसके बेसिस पे डिवाइड नहीं होंगी कैटेगरी। द अप्रोच, द रिजल्ट दैट यू वांट टू हैव, द अप्रोच दैट यू विल बी अप्लाइंग, उसके बेसिस पे कैटेगरी डिवाइड होगी। ठीक है। हेलो। ओके, अगर मान लो यही दो चैनल का आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आप ऐसा करते हैं कि आपको देखना है कि दोनों चैनल ने एक महीने तक किस तरह का कंटेंट दिया, और उसके पीछे हाँ, उसके पीछे कारण क्या है, और ये समझने की कोशिश कर रहे हो। जब आप कारण जानना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कारण जानने का मतलब है कॉजल रिलेशनशिप हो गया, कॉज एंड इफेक्ट आप देखना चाह रहे हो, तो फिर ये पोस्ट पॉजिटिविज्म बन जाएगा। ठीक है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की, एक्सियोलॉजी की, सो दैट वी आर एबल टू फिनिश दिस टॉपिक टुडे। Okay, starting with what do you mean by epistemology? Epistemology is basically the idea of जयवीर लेफ्ट, शायद नेटवर्क की कोई दिक्कत हो रही है। हाँ, इट्स ओके, कोई नहीं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है दैट the way you would be constructing, you would be creating knowledge for your research topic. अगर आप रिसर्च टॉपिक करना जो रिसर्च टॉपिक आपने चूज करा है, उसमें रिसर्च करने का आपका तरीका, नॉलेज को यानी कि ज्ञान को यू कुड से क्रिएट करने का तरीका, अगर आपका ऐसा है जिसमें आप साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं, ऐसा है जिसमें कि आप लॉजिक यूज करते हुए कॉज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, तो आपका रिसर्च पोस्ट पॉजिटिविज्म होगा। जैसे कि मान लीजिए हम किसी न्यूज़पेपर को स्टडी करते हैं और हम ये बात करते हैं कि इसमें इस तरह की रिपोर्ट इसलिए लिखी गई है क्योंकि यहाँ पर जो सब इनको जो प्रमोशनल मनी है, जो फाइनेंसिंग बैकिंग है, वो इस पार्टी से आती है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम developing a causal relationship between the reason why we are getting a particular kind of content and the reason behind it। यानी कि एक न्यूज़पेपर किस तरह का कंटेंट दे रहा है, उसका कारण अगर मैं बताई हूँ कि कारण क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है। इफेक्ट ये है कि वो अपनी बात रखते हुए बायस्ड हो रहे हैं, कारण ये है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जब मैं एस्टेब्लिश कर रही हूँ, तो मेरा रिसर्च पोस्ट पॉजिटिविज्म हो जाएगा। और एक और चीज इसमें बहुत जरूरी है, दैट इज इंटर सब्जेक्टिव अग्रीमेंट। इंटर सब्जेक्टिव अग्रीमेंट से मतलब ये है कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वहां पर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो कहीं पर भी रिसर्च कर रहे हो, अगर वो सेम टॉपिक ले रहे हैं, सेम मेथड ले रहे हैं, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप बोलें कि यू वुड बी बॉइलिंग वाटर हेयर इन इंडिया ऑन अ सर्टेन टेम्परेचर, तो फिर वो वाटर उसी तरीके से बॉयल हर जगह पे भी होता है, टेम्परेचर भी वही रहेगा, कंडीशन वही रहेगी। तो सेम गोज फॉर दिस कैटेगरी ऑल्सो, पोस्ट पॉजिटिविज्म। अगर
आपने एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट करा है, न्यूज़ चैनल सेलेक्ट करा है, कोई फिल्म सेलेक्ट करी है, आप उस पर रिसर्च कर रहे हो और आपका रिसर्च करने का जो मेथड है वो साइंटिफिक है, आपने कोई स्केलिंग यूज़ करी है, कोई स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करा है और उसके बेसिस पे अपना जजमेंट दे रहे हैं, तो मतलब ये है कि अगर सेम मेथड कोई और रिसर्च यूज़ करता है और सेम स्टैटिस्टिकल मेथड को टूल को यूज़ करता है तो उसको भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स में ये रेप्लिकेट करने की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि अगर आप वही मेथड यूज करते हैं आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी टेम्परेचर अभी लेट्स से इट्स 100 डिग्री, तो आप कोई सा भी थर्मामीटर यूज कर रहे हो वो लगभग उतना ही आएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, अगर आप एक साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर रहे हो, तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा और ये बहुत ही बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है पोस्ट पॉजिटिविज्म की, नॉलेज क्रिएट करने की। अनटिल अनलेस यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, तो आप उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कल्चरल। कल्चर में नॉलेज क्रिएट करने का तरीका सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक रिसर्चर होने के नाते आप अपने रिसर्च टॉपिक्स के साथ उसमें जो लोग हैं, जो रेस्पोंडेंट हैं, जो आपकी रिसर्च कम्युनिटी है, उसके साथ आप किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसी आपकी बातचीत है, कैसा आपका कम्युनिकेशन है, उस पर ही नॉलेज क्रिएशन डिपेंड करती है। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मैं समझूं कि इंडिया में आर्ट फिल्में जो हैं, पैरेलल फिल्म्स हैं, वो किस तरीके से बनती हैं, तो मैं फिल्मों को देख रही हूँ और उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर नॉलेज क्रिएशन डिपेंड करेगी मैं एज रिसर्चर, मेरे ऊपर और मेरी जो देखने की जो व्यूइंग जो पूरा प्रोसेस रहेगा फिल्मों का, उसके ऊपर। तो नॉलेज क्रिएशन कल्चरल कैटेगरी के लिए डिपेंड करती है एक रिसर्चर और उसके रिसर्च टॉपिक के बीच में जो भी इंटरेक्शन है उसके ऊपर। ओके और क्रिटिकल जो कैटेगरी है यहाँ पर, इसका नॉलेज क्रिएट करने का तरीका भी काफ़ी कुछ कल्चरल जैसा होता है, सिर्फ एक फ़र्क है यहाँ पर। क्रिटिकल जो कैटेगरी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि अगर नॉलेज क्रिएट जो करी गई है उससे आप किसी तरीके से एम्पावरमेंट नहीं ला रहे हैं, आप जो कॉमन मासेस हैं उन्हें लिबरेट नहीं कर रहे हैं, उन्हें फ्री नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं कर रहे हैं, तो उस नॉलेज क्रिएशन का कोई वैल्यू नहीं है। सो क्रिटिकल कैटेगरी कंसीडर knowledge as knowledge only if it is able to liberate people from the foundation that they have। किसी भी तरह का जो लोगों के ऊपर प्रेशर है, जो लोगों के ऊपर you could say the kind of dependency they have, the kind of problems they have, जिस तरीके की प्रॉब्लम में वो स्टक हैं, फंसे हुए हैं, उनसे जब तक आपकी नॉलेज उन्हें नहीं निकालेगी तब तक उस नॉलेज को वो नॉलेज नहीं मानते हैं। ओके ये चीज आप बहुत ज्यादा देख सकते हैं वेस्टर्न थ्योरिस्ट के अंदर। जेएनयू में जिस तरह का हम रिसर्च देखते हैं, ये जो लेफ्टिस्ट आइडिया है वो काफी कुछ यू कुड अंडरस्टैंड इट बाय काइंड ऑफ रेफरिंग इट टू क्रिटिकल रिसर्च और क्रिटिकल थ्योरी। ऑल्दो ऑल लेफ्टिस्ट आर नॉट क्रिटिकल इन नेचर, बट काफी कुछ क्लोज हो जाता है, बिकॉज लेफ्टिस्ट होने का मतलब ही है दैट यू बिकम मोर यू कुड से इंडिविजुअली observant about what is happening in your society rather than sticking to your rigid ideas like right wing। एंड द लास्ट वन इज नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव में नॉलेज क्रिएट करने का तरीका है जो आपने आधार बना लिया है, जो भी बेस आपने सेलेक्ट कर लिया है परफेक्ट मानिए, जिसके बेसिस पे आप अपना रिसर्च करेंगे। मान लीजिए अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अपना आधार मांगा है, बना लिया है, तो नॉलेज जो है वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की जो नॉलेज है उसी पे डिपेंड करेगी। अगर आधार बना लिया है कि वी विल बी डूइंग द वर्किंग ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर, ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ अब्दुल कलाम हैज वर्कड, तो अब्दुल कलाम का जो भी लाइफ रही है वही आपका आधार बन जाएगी। यू आर सेइंग दैट यू वांट टू जज हाउ डिफरेंट क्रिकेटर्स हैव वर्कड on the basis of how the career of Sachin Tendulkar has been, or if you want to see how other captains have been for Indian cricket team on the basis of how Sourav Ganguly was, तो जो हम आधार बना लेते हैं नॉर्मेटिव में नॉलेज क्रिएट करने का तरीका वही बन जाता है। ओके एंड देन यू हैव लास्ट वन एक्सियोलॉजी। एक्सियल जो है उसको आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम रिसर्च करने आते हैं तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम अपने
वैल्यूज को भी यूज करते हैं, यानी कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी डू हैव सर्टेन काइंड ऑफ ओपिनियन अबाउट थिंग्स। चाहे हम कितना भी बोल लें कि हम अपनी अपनी खुद की जो आइडियाज हैं उन्हें यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी बायस नहीं होंगे, बट ये हो ही जाता है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है हमारा, और दैट इज वेरी पॉसिबल फॉर human beings to get a little biased about one thing। इस चीज को ध्यान में रखते हुए एज अ रिसर्चर आप अगर अपनी वैल्यूज को समझते हैं, द काइंड ऑफ वैल्यूज यू विल बी यूजिंग फॉर योर रिसर्च, तो बहुत ही दिस बिकम्स वेरी इजी। आपका रिसर्च जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। एग्जाम्पल लेके इसके बारे में बात करते हैं। वैल्यूज जो हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव से मतलब है, आप इसको ऑब्जेक्ट से समझो। ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग बीइंग, एक नॉन लिविंग थिंग। अगर कोई टेबल की बात करे, वॉल की बात करे, डोर की बात करे, पैन की बात करे, तो इन सारी चीजों में किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होगी, ओपिनियन नहीं होगी। तो जब आप एक नॉन लिविंग थिंग की तरह रिसर्च करते हैं, जब आप इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं अपनी बायसनेस को, देन यू से दैट यू आर मोर ऑब्जेक्टिव इन योर नेचर, इन टर्म्स ऑफ योर वैल्यूज। और जब आप एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, मेडिकली जो सब्जेक्ट का ये टर्म है, ये शब्द है, ये यूज किया जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए। सब्जेक्टिव होने का मतलब है कि जब आप अपनी ओपिनियंस को, अब जब आप अपनी बायसनेस को यूज करते हो अपने रिसर्च के लिए। बायसनेस से मतलब ये नहीं है दैट यू स्टार्ट बीइंग पार्शियल। बायसनेस से मतलब ये है कि अगर आप ये जाके समझना चाहते हैं कि ट्राइबल एरियाज में किस तरह का कम्युनिकेशन है, और आप वहां जाके उस ट्राइबल एरिया का 6 महीने 1 साल के हिस्सा बन जाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पर आप ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग योर इमोशंस, योर फीलिंग्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। तो इस तरह के रिसर्च में जब आप अपनी ओपिनियंस को खुद ही एक्सेप्ट करते हो, इम्ब्रेस करते हो, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव वैल्यूज। ओके ओके, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्योंकि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, ये साइंस के काफी क्लोज है, साइंटिफिक मेथड्स यूज करता है, तो ये बाय नेचर ही ऑब्जेक्टिव होता है। और जो रिसर्चर हैं वो कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वो ऑब्जेक्टिवली रिसर्च करें, साइंटिफिक मेथड यूज करें, ऐसे मेथड यूज करें जो क्वांटिफाई करते हो, यानी कि जिनको कि आप न्यूमेरिकली मेजर कर सको, जो कि क्वालिटेटिव नहीं हो, शब्दों पे नहीं जिनका वर्णन हो, जिनको कि आप नंबर्स के थ्रू क्वांटिफाई करके, कैलकुलेट करके बता सको। ओके ओके, कल्चरल जो कैटेगरी है उसकी एक्सोलॉजी, यानी कि उसमें जो वैल्यूज यूज करी जाती हैं, वहां पर रिसर्चर बहुत ओपनली इस बात को मानते हैं कि क्योंकि उनका यूज अंडरस्टैंड करने का है, तो यहाँ पर वैल्यूज जो हैं वो सब्जेक्टिव ही होंगी। तो रिसर्चर्स ओपनली इस बात को क्लेम करते हैं दैट दे आर नॉट ट्राइंग टू बी ऑब्जेक्टिव, दे नो दैट बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ समथिंग, तो उनका नेचर सब्जेक्टिव ही रहेगा। ओके जैसे कि मेरा रिसर्च जो है उसमें भी मैंने कहीं पर ये क्लेम नहीं करा है दैट आई एम ऑब्जेक्टिव इन नेचर, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इनकोडिंग ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज अफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर इन कम्युनिकेशन मैसेजेस। तो मैंने वहां पर क्लियरली, बिकॉज गोल ही अंडरस्टैंड करना था, तो आई क्लियरली एक्सेप्टेड दैट दिस रिसर्च इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर एंड देयर इज नो क्लेम फ्रॉम द साइड ऑफ द रिसर्चर्स टू बी ऑब्जेक्टिव। ओके एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज क्रिटिकल। क्रिटिकल मीन्स कि आप जो है क्रिटिसाइज करेंगे सिस्टम को, आप उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, और ये जो बदलाव लाने का आइडिया है ये हमारे को बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के क्लोज ले जाता है। आप समझ सकते हो कि जितना भी हम बात करते हैं समाज में चेंज आए हैं, वो सबसे पहले चेंज आए हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, गवर्नेंस के सिस्टम में। पहले राजा होते थे, फिर उसके बाद लोगों ने अटैक भी करने शुरू कर दिए, फिर इंपीरियलिज्म आया, फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आई हैं। अब वो पूरा राजा वगैरह का जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, अब आप अपना नेता खुद चुन सकते हो। तो ये सारी चीजें तभी हुई हैं जब आपने किस तरीके से राजतंत्र किस तरीके से चलेगा उसमें बदलाव लाए हैं, द वे योर गवर्नेंस सिस्टम विल बी। तो क्योंकि जब आप सिस्टम को बदलने की बात करते हो और क्रिटिसाइज करते हो, तो यहाँ पर क्रिटिकल जो थ्योरी है, क्रिटिकल जो कैटेगरी है, उसकी वैल्यूज जो है वो बाय नेचर पॉलिटिकल हो जाती हैं। ओके ओके और ये जो
पॉलिटिकल नेचर है, इसको आप एग्रेसिवली वैल्यू लेडन बोलते हैं। एग्रेसिवली वैल्यू लेडन से मतलब ये है कि यहाँ पर आप जिस भी तरह से समाज को देखना चाहते हो, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक नेचर है, सिस्टम है, वो इस तरह का हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो धर्म को आधार बना के बातचीत नहीं करे, उसके बेसिस पे इलेक्शन नहीं हो और इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं हो। तो यहाँ पर ये मेरा जो सेकुलर आइडिया है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और क्रिटिकल रिसर्चर्स जो हैं वो अपना जो भी आइडिया यूज करते हैं, जो भी वैल्यू यूज करते हैं, उसके प्रति बहुत ही ज्यादा जोशीले होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। अगर वो उनकी बात नहीं मानी जाए, सो दे आर रेडी टू रिवोल्ट, दे आर रेडी टू प्रोटेस्ट, दे आर रेडी टू गो टू एनी एक्सटेंट टू ब्रिंग द चेंज। तो इसलिए उन्हें हम बोलते हैं दैट दे आर एग्रेसिवली वैल्यू लेडन, यानी कि जो भी जिस भी तरह के सिद्धांत वो ला रहे हैं अपने रिसर्च में, उसके प्रति वो बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं। क्लियर? हेलो? ओके, नाउ द लास्ट वन इज नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव को भी हम वैल्यू लेडन बोलते हैं, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर आप वर्ड एग्रेसिव यूज नहीं करते हो, और उसकी वजह यह है कि आप बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप अपने सिद्धांतों को, जो भी आपने परफेक्ट मीडिया सिस्टम लिया है, उसके सिद्धांतों को यूज करके आप जजमेंट जरूर देते हो, लेकिन आप बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और ये बदलाव लाने की जो कोशिश नहीं है यहाँ पर, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ते हैं। यू डोंट बिकम टू एग्रेसिव। आप बहुत ही ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं बदलाव लाने के पीछे। यू आर नॉट कंसर्न कि बदलाव उस तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। यू ओनली कंसर्न कि आपने अपना जजमेंट किस तरीके से दिया है। तो ये वैल्यू लेडन तो है यहाँ पर वैल्यूज, लेकिन यहाँ पर एक एग्रेशन नहीं है जो कि क्रिटिकल कैटेगरी में आपको दिखता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिलोसफिकल कैटेगरीज। ये फिलोसफिकल कैटेगरीज यहाँ तक ही थी, और ये जो मैंने अभी डिस्कशन करा है इन 4